forest, we will cut down all the, will destroy all the lakes and water bodies and things, which should not happen. So it prescribes for simple living, humbleness. It prescribes for taking responsibility of things. हम यहाँ पे we are not just exploiting agents, we are part of the system, we are system. So we have to feel that responsibility, and we have to talk about environmental ethics. So, and this particular talks about kind of, we can add here is against exploitation. So these are the things the quote is trying to send it across to you. So basically quote का ये मतलब समझ में आ गया as to what it says. Now हम जब सॉल्व आंसर राइट करने जाएंगे, लिखने जाएंगे, तो हम कैसे उसको डील करेंगे? देखिए, सबसे पहले कोट्स के कीवर्ड्स ढूंढने हैं. ओके, यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स है? लाइक फॉर एग्जांपल इनफ. मेन दो कीवर्ड्स है नीड एंड ग्रीड. सो जरूरत है, ठीक है, पानी चाहिए पी लो, कोई दिक्कत नहीं है. खाना ऑब्वियसली सबको चाहिए, खाइए. शेल्टर चाहिए, बेसिक, ठीक, सब है. बट ग्रीड, मुझे ज्यादा चाहिए, नहीं. There is no point in having greed, because if you go with the greed, you will exploit the nature, you will exploit others also. And other thing is, when you exploit nature, you actually reduce the capacity of others to actually fulfill their needs, because किसी एक की greed किसी 10 लोगों की नीड को पूरा करने में दिक्कत कर सकती है. So one person's greed creates problem for 10 persons or 100 persons need. That's how things work, because greed is a very, it's a very selfish, self-centered. Greed is always selfish or self-centered concept, और self-centered point of view से जो आता है, narrow point of view से जो आता है, narrow vision of life कुछ नहीं है. Life is just exploit and die one day. Because see, this die one day, on a lighter note, so now because we are talking about philosophical and deeper meaning, need to understand one thing. This is a very, very strong word, big concept. It's the ultimate concept. There is nothing beyond this. Everybody is going to go. So when we know everybody is going to go, and this concept of death, the intensity of the concept of death makes person more philosophical and spiritual both, and hence ethical. Why? Because you have come here, you will stay here for some time, and you will actually die. Whatever you do, you will actually die. And death is such an uncertain चीज है कि जो कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. So why I am bringing this more discourse like topic is because we are talking about philosophy and quotes and deeper meaning. That's why you need to, in our own life also, it's better to actually always have this particular concept in your mind that one day we are going to die anyway, because somehow it will make you less greedy. At least it will make you start making you lesser greedy. ठीक. So कीवर्ड्स हो तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है? मेनली नीड एंड ग्रीड मेन कीवर्ड्स हैं. इनफ ऑन अर्थ वाला इज आल्सो देयर. सो कीवर्ड्स से हमें क्या पता चलता है कि वो किस कनोटेशन की बात कर रहा है, व्हाट इज द मेन डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, वो जो ग्रीड और नीड की कंपैरिजन करने की बात कर रहा है. नाउ व्हाट इज द मेन थीम? वी डिस्कस्ड मेन थीम. दिस इज द मेन थीम. This is what they want to prescribe. This is what Mahatma Gandhi wants us to follow or think upon, deliberate upon. This is the particular concept he is talking about. So this is the main thing. Ethical values ये हमने लिखे, जैसे कि ये environmental ethics, responsibility, humbleness, simple living, and जिसको हम हिंदी में बहुत अच्छा एक शब्द है सादगी भरा जीवन. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत स्वीट शब्द है. So that is simple living. Now arguments in support of the quote. Generally you are not expected to counter the quote. Why? Because quote is
some philosophers, famous, all proven, very abstract, very deep meaning statement. So there, in the particular quote, there is nothing to counter about. There might be some one or two liner, that too at the end, maybe if you think it is appropriate to say, you can, but most of the time that is not the case. So इसमें argument क्या है इस पर्टिकुलर कोट में? सपोर्ट के आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द कोट. यस, हमें अब ये देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है. दिस वन आर्गुमेंट इज रिसोर्सेस आर ऑलवेज लिमिटेड. सेकंड, ये ग्रीड क्या होता है? ग्रीड इज व्हेन यू एक्चुअली नीड वन, यू वांट 10, दैट इज ग्रीड. एंड व्हेन इफ एवरीबody wants to have 10, there is not available, it's not available only. So again, resources are very short. So the whole point of argument here is, whenever you actually have life of simplicity, it is good for others. And when we talk about ethics, it straight away means others. Means ethics मतलब दूसरों का ख्याल is what ethics is. So whenever others are taking prominence in your thinking, you are ethical. So this is exactly what it is talking about. और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता है, यू कैन एक्चुअली गिव एग्जांपल्स ऑफ द वे वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, द वे वी आर बिकमिंग मोर ट्रांजैक्शनल इन आवर नेचर. यू नो व्हाट इज ट्रांजैक्शनल? ट्रांजैक्शनल इज लाइक मुझे इससे क्या मिलता है. अदरवाइज इफ आई एम गेटिंग समथिंग, आई एम रेडी टू गिव सम अटेंशन टू इट. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी अटेंशन इट. सो देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज ओनली सेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, अथॉरिटी, पावर. मुझे क्या मिल रहा है? सो आज के जनरेशन और ओवरऑल लोग भी बहुत जो है ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं, बहुत नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ हो रहे हैं, हो ही रहे हैं. आप देखिए जिस तरीके से क्राइम्स हो रहे हैं, जिस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं, लोग स्विस बैंक्स टाइप लोगों मतलब लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रहा है, और इवन स्टूडेंट्स एंड इवन टीचिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, जो एकदम सैक्रेड और बहुत अहम फील्ड माना जाता है, वहाँ पे भी कैसे लोग करप्शन एंड मनी के पीछे ये भागे हैं. तो ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा. हमें ये समझना है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग एस्पेक्ट है, बट सही चीज़ बोलना तो है ही. अल्टीमेटली जो सही है वो सही है, भले आप उसको फॉलो करो या नहीं करो, वो तो अलग बात है ना. आज नहीं, कल नहीं, परसों में भी 10 साल बाद आपको रियलाइज हो कि यार वो बात तो सही थी, उस समय मुझे सही नहीं लगी, लेकिन अभी मुझे सही लगती है. इनफैक्ट पूरा एथिक्स का जो सीन है उसका लॉजिक भी यही है कि आप आज नहीं तो कल वो सीख लेंगे. सो आज के पूरे एग्जाम्पल हमें वो देने हैं कि कैसे यू नो एक एक आदमी के पास 5-5 कार होती हैं, 10-10 टू व्हीलर्स होती हैं, कोई पॉइंट नहीं है, बट दे आर हैविंग इट. इनफैक्ट अगर आप गांधी को कोट करें, एक चीज हमेशा कोट यहाँ पे ला सकते हैं, जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा, वो इस एक्सप्लॉयटेशन पे ही टिका है. क्योंकि जैसे हम बोलते हैं, अगर 10 गाड़ियां जो है एक बंदा ले रहा है, तो हम बोलते हैं नहीं, ही इज एक्चुअली हेल्पिंग द मार्केट टू ग्रो, समबडी इज गेटिंग जॉब. बट देन द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द होल सिस्टम दैट वी हैव मेड इज नॉट बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल, इट्स बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन. और किसके पास? See, we are जो भी 7 point some billion people on this planet, and most of them, or 30% of them are below poverty line according to United Nations or World Bank. So they don't have food to eat because their need is compromised, and some people have resources to actually fulfill their greed and extravagance. ये जो चीजें हैं ये सब यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है. एंड दैट एक्चुअली आज के कंटेक्स्ट में वो जो है फ्लैशीनेस और जैसे हमने बोला एक्स्ट्रावेगेंस, वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट एथिकल नेचर से भी होता है, एथिकल नेचर पे होता है. बिकॉज नाउ व्हाट इज द सीन? द वन हु इज एक्चुअली करप्ट एंड अर्निंग मनी फ्रॉम इलीगल एंड अनएथिकल मीन्स, ही इज नॉट गोइंग टू जेल, he or she. Very rarely the chance comes where he or she goes to jail, but on the other side he enjoys all the comfort and conveniences and pleasure and luxury of the life. So what happens is, the whole unethical thing
दिस गोज डाउन इन दी हायरार्की ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन एंड संस्कृताइजेशन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर बोल सकते हैं। सो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? एज अ सोसाइटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ सेल्फ सर्विंग थिंग। सो उस कंटेक्स्ट में हमें, वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैंने बोले वो सब लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल उसमें आएंगे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, बट इसमें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमें लिखना है जैसे बिजनेस कैसे चल रहे हैं, पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है, इवन हेल्थ, सॉरी, और वुड से एजुकेशन एंड हेल्थ, उस सेक्टर में भी कैसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इट्स ऑल अबाउट ग्रीड एंड हाउ दैट इज द रीजन वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये यहाँ पे लिखना है एंड दैट्स हाउ यू टैकल द कोट। सो यू मेंशन एथिकल वैल्यूज, द कोट इज ट्राइंग टू प्रोपोगेट द मेन थीम वी डिस्कस्ड शब्दों में, आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट, वी टॉक्ड अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ओवरग्रोइंग पॉपुलेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो बहुत सारी चीजें और भी है, स्पोर्ट्स ले सकते हैं, वहाँ पे बेटिंग होती है, मैच फिक्सिंग, बस हर चीज, एवरीथिंग, everybody is just desperate to grab something so that he or she can exploit, which is actually not a human existence. This is more like animal, or rather animal also, अगर उसका पेट भर गया है तो जब तक नेक्स्ट टाइम भूखा नहीं होता, he will not do anything, मतलब he or she or it will not do anything, any exploitation of the system. but हमारा ऐसे नहीं है, we exploit the system to such an extent as if we are actually going to live on this planet for 1,000 years. We cannot live even barely more than 80 years. So why to gather so much of resources? And whereas some people are not able to fulfill their own needs. So this also talks about one more thing. Sorry, I forgot to mention. This is a very interesting thing that this talk about is inequality. Because if somebody can fulfill the greed and some are not able to fulfill their need, that means there is a clear-cut inequality of opportunity, inequality of access to the resources and things like that, inequality to the liberty also. So इस पर पूरे कंटेक्स्ट में आपको वो लिखना है, इस पॉइंट्स को पकड़ के लिखना है, ठीक। एंड आपको जब आप 1, 2 बार 3 बार जब लिखेंगे, देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू टैकल कोट, so that all the aspects that quote is asking us to touch upon are actually touched upon, ठीक। So should we go to the next quote? Sorry, I have a suggestion here. See, whenever you are going through this video, what you can do is, you can, whenever the quote is there, you pause the button and try to write your own answer before reading this. Why I am saying this? Because quote is not something you have to read in some book. Okay, quote is the thing that you have to reflect upon in your own life. सोच के कि क्या कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं कि वो पता नहीं होता। अभी देखो ना, ये कोट देखो, I count him braver, जाबाज और बहादुर, who overcomes his desires, खुद की जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसके ऊपर जो काबू पाता है वो, than someone, him, who overcomes his enemies। तो मतलब क्या है कि अपने दुश्मनों के ऊपर विजय पाने वाले से भी ज्यादा अपने खुद की इच्छाओं पे विजय पाने वाले को मैं काउंट करता हूं, मतलब आई कंसिडर हिम मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। अभी इसका मुझे बताइए, why do you think you need to read all this? Why don't you also write? Why don't you pause and try to attempt the answer? पेन पेपर पे ट्राई करो, क्या लिख सकते हैं। हमने बात किया, जैसे हमने ऊपर बात किया, तो आपको आंसर लिखने के लिए ये वाला है ना, कीवर्ड्स, मेन थीम, एथिकल वैल्यू, आर्गुमेंट्स, प्रेजेंट कंटेक्स्ट, एग्जांपल्स। और इसको ऐसे पॉइंट, ये तो समझने के लिए है, ऐसे आप लिख के मत करिए कीवर्ड लिखा, मेन थीम, ऐसे नहीं करना है। आपको उसी कंटेक्स्ट में लिखना है पूरा। आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही होगा कि पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आप मेन बॉडी लिखेंगे, फिर आप ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखेंगे। ये तो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लेकिन पॉइंट्स क्या क्या कवर करेंगे, ये पॉइंट्स वो आंसर में कवर होने चाहिए। ये थोड़ा सा आप याद रखना, कीवर्ड, मेन थीम, एथिकल वैल्यू, आर्गुमेंट्स, प्रेजेंट कंटेक्स्ट एंड एग्जांपल्स।